کچھ 2-4-8 دن سے سوشل میڈیا کے ذریعے اور پرنٹ میڈیا کے ذریعے یہ بات کی اطلاعات مل رہی تھی کہ خواجہ بلال احمد کو گوشہ محل کی سیٹ نہ ملنے کی بنیاد پر خواجہ بلال احمد مجلس اتحاد المسلمین سے دستبرداری کی جو ہے غور و فکر میں ہے. اس بات کی اطلاعات سوشل میڈیا پر گشت کر رہی تھی. میں آج اس کی وضاحت کرنے کے لیے آپ کے درمیان میں آیا ہوں. میں سب سے پہلے گوشہ محل کی ٹکٹ کا دعوے دار یقیناً تھا، اور آج میں جب مجلس اتحاد المسلمین سے دستبرداری اختیار کر رہا ہوں تو اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ کیوں صدر مجلس بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب کیوں نہیں گوشہ محل سے اپنا امیدوار کھڑا کرتے. اب اس کے اوپر یہ ایک ایسی ٹاپک ہے جس کے اوپر بہت کچھ بولا جا سکتا، بہت کچھ سنا جا سکتا، اور ہر ایک کی اپنی اپنی ایک الگ الگ تھاٹ ہے. لیکن میں آج اس بات کو یہاں پر کلیئر کبھی کرنا چاہتا ہوں کہ گوشہ محل کے اندر، گوشہ محل اسمبلی کانسٹیٹنسی کے اندر ٹوٹل وہاں پر مسلمانوں کی تعداد 79,000 یعنی قریب 80,000 کی لسٹ اکتوبر کے مہینے میں جاری کی گئی تھی. ابھی فائنل لسٹ الیکشن سے 10 دن پہلے کچھ جو ہے آئے گی، جس کے اندر کچھ بڑھیں گے یا پھر کچھ کم ہوں گے. تو چلیے مان کے چلتے ہیں کہ 80,000 مسلمانوں کی تعداد، ہم اس کو مان کے چلتے ہیں 80,000 کی تعداد والا وہ کانسٹیٹنسی ہے. دوسری بات میں یہاں پر یہ بھی واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ اگر ہم ماضی میں ہمارے انتخابات کو اگر دیکھیں گے تو ملک پیٹ جو کانسٹیٹنسی ہے، جہاں سے احمد بن عبداللہ بلالہ جو پہلی مرتبہ 2009 میں وہاں سے کامیاب ہوئے تھے، وہ صرف اور صرف 30,000 ووٹ لے کے کامیاب ہوئے تھے. بائک اللہ سے وارث پٹھان جو پہلی مرتبہ 2014 کے انتخابات میں کامیاب ہوئے تھے، 25,000 ووٹ لے کے ایم ایل اے بن گئے تھے. بلالہ صاحب میں سمجھتا ہوں 30,800 کچھ ووٹ تھے، وہ لے کے جو ہے وہ ایم ایل اے بن گئے تھے. جو کانسٹیٹنسی میں 80,000 مسلمان ہمارے ہیں، اس 80,000 مسلمانوں کی کانسٹیٹنسی میں ہم اپنا کینڈیڈیٹ کیوں نہیں کھڑا کرتے؟ یہاں پر میں پوچھنا یہ چاہتا ہوں، مجلس اتحاد المسلمین کی فائنل لسٹ آ چکی ہے. مجلس اتحاد المسلمین جبلی ہلز سے بھی جو ہے اپنا ایک امیدوار کھڑا کری ہے، راجندر نگر سے بھی ایک اپنا امیدوار کھڑا کری ہے. کیا حیدرآباد کے مسلمانوں کو اس بار یہ بات کو سمجھنا ضروری ہے کہ ہم کو اظہر الدین کو ہرانا ضروری ہے یا راجہ سنگھ ملون کو ہرانا ضروری ہے؟ اس بات کا جواب آپ کو نہیں ملے گا، لیکن اس کا جواب آپ کو یقیناً ملے گا. حکمت عملی سمجھو کل ہند مجلس اتحاد المسلمین کی حکمت عملی کے نام پہ مسلمانوں کے جذبات سے جو ہے ہمیشہ کھیلا جاتا ہے. جہاں پر 2009 کا جو اسٹائل تھا ملک پیٹ پہ، جس انداز میں ملک پیٹ کانسٹیٹنسی پہ مجلس اتحاد المسلمین نے اپنا قبضہ گاڑا، اپنی حکومت وہاں پر جو قائم کی، جو اب تک بھی کنٹینیو چل رہی ہے، کیا ہم اس انداز میں گوشہ محل نہیں لڑ سکتے تھے؟ اس کا جواب آپ کو نہیں ملے گا، کوئی بھی اس کا جواب نہیں دے گا. وہ ملون دن بر دن سرکار کی شان میں گستاخی کرتا ہے، ہم مسلمانوں کے دلوں کو ٹھیس پہنچانے والے بیانات دیتا ہے، اور میری جماعت کل ہند مجلس اتحاد المسلمین کے پاس ایسا کوئی پلان، ایسا کوئی منصوبہ نہیں ہے کہ اس ملون کو ہرایا جائے. کیونکہ یہ تمام لوگ جانتے ہیں کہ میں کانگریس سے جب مجلس اتحاد المسلمین میں دوبارہ شمولیت اختیار کیا تھا، جب بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب نے یہ بات کو ہم کو کہا تھا کہ آئیے بھارتیہ جنتا پارٹی کو ہرانے کے لیے آپ ہمارا ساتھ دیجئے. شاید لوگوں کو یاد نہیں ہے، لیکن حیدرآباد کے لوگوں کا حافظہ بھی بڑا کمزور ہوتا ہے. اس وقت بھارتیہ جنتا پارٹی ایک بہت بڑے پیمانے پر میونسپل الیکشنز کے اندر جو ہے وہ کام کر رہی تھی، جس کے نتائج بھی آپ کے سامنے ہیں. ان کے پاس 40 سے زیادہ کارپوریٹرز ان کے کامیاب ہوئے. اس وجہ سے ہم نے بھارتیہ جنتا پارٹی کے بڑھتے ہوئے عزائم کو روکنے کے لیے ہم نے یقیناً مجلس اتحاد المسلمین کا ساتھ دیا. اب یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ بہار جا کر وہاں پر 100 سیٹیں لڑاتے ہیں، جہاں پر آپ کی کوئی شاخ نہیں ہے. گوشہ محل میں آپ کے 2 کارپوریٹر، جہاں پر آپ کی کوئی شاخ نہیں ہے. اتر پردیش جا کے آپ وہاں پر 100 سے زیادہ سیٹیں لڑاتے ہیں. گوشہ محل حیدرآباد پارلیمنٹری کانسٹیٹنسی میں آتا ہے، جہاں کے ایم پی خود اسد الدین اویسی صاحب ہے، اور جو ہر انتخابات میں جب الیکشن ہوتے ہیں، پارلیمنٹ کے جب بھی الیکشن ہوتے ہیں، اسد الدین اویسی صاحب وہاں سے 30,000 40,000 ووٹ جو ہے اسد الدین اویسی صاحب وہاں سے حاصل کرتے ہیں.
क्या मजलिस इत्तेहाद उल मुस्लिमीन जहां पर 40,000 वोट हासिल करती है, जहां पर उनके 2 कॉरपोरेटर मौजूद है, जहां पर उनके इफ्तदाई के सदर मोहतमदीन मौजूद है, जहां पर उनकी एक बड़ी तादाद में जहां पर जो है उनके एक 80,000 से ज़्यादा मुसलमान वोटर्स जहां पर मौजूद है, क्या मुसलमान वहां पर अपना कैंडिडेट मजलिस इत्तेहाद उल मुस्लिमीन नहीं खड़ाती? इसका जवाब आपको दूसरी जानिब से ये मिलेगा, ये कहेंगे कि नहीं, हिकमत अमली समझो, हम टीआरएस या कांग्रेस की ताईद में अपने कैंडिडेट का ऐलान करते हैं। हमने माजी में भी देख लिया कि आपने इससे पहले मुकेश गौड़ की ताईद की, वो भी हार गया। इससे पहले आपने टीआरएस की ताईद की, वो भी हार गया। इस मर्तबा बीआरएस की ताईद करेंगे, वो भी हारेगा। आपके पास कोई मंसूबा नहीं है। क्यों? ऐसी क्या बात है जो राजा सिंह को जो है आप इतनी शिद्दत से मोहब्बत करते हैं कि उसको आप बार बार कामयाब कराना चाहते हैं? अब मैं वाज़ेह तौर पे कह दूं, आने वाले पार्लियामेंट इलेक्शन में आप देख लीजिए, उस मलून को भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट बनाया जाएगा पार्लियामेंट इलेक्शंस के लिए हैदराबाद के। जैसे ही वो कैंडिडेट बनेगा, ये तमाम जितनी शिकायतें हैं आपके मेरे जैसे लोगों को, जितने भी लोगों को जो है नाराजगियां हैं, ये तमाम नाराजगियों को बुलाया जाएगा और फौरी इस मलून को लाके आपके सामने खड़ा कर दिया जाएगा। हैदराबाद के मुसलमान जज्बाती नारे लगाते हुए निकलेंगे अपने मकानों से, भारी अक्सरियत से मजलिस इत्तेहाद उल मुस्लिमीन को कामयाब कर दी। इस वजह से मजलिस इत्तेहाद उल मुस्लिमीन हमेशा एक ऐसे फिरका परस्त चेहरे को हैदराबाद के अंदर सियासी तौर पर जिंदा रखती है। आप अगर उसकी तारीख देखेंगे तो वो बदमबाल रेड्डी की शक्ल में कभी जिंदा रहा, कभी आले नरेंद्र की शक्ल में जिंदा रहा, कभी इस मलून की शक्ल में जिंदा रहा, कभी बंडारू दत्तात्रेय की शक्ल में जिंदा रहा, कभी किशन रेड्डी की शक्ल में जिंदा रहा। तो ये हमेशा इस तरीके से मजलिस इत्तेहाद उल मुस्लिमीन एक अपने फिरका परस्त चेहरे को जिंदा रखती है। अरे हमने बाईकल्ला के अंदर, महाराष्ट्र के जब इलेक्शन हुए, बाईकल्ला के अंदर 25,000 वोट लेके हैदराबाद, 25,000 वोट लेके बाईकल्ला से वारिस पठान वहां से जो है एमएलए मुंतखब हो गया। मलकपेट को जब आप देखेंगे, मलकपेट के अंदर 30,000 वोट लेके अहमद बिन अब्दुल्ला बलाला पहली मर्तबा एमएलए बन गए। जाहिर सी बात है, बनने के बाद अपनी कारकर्दगी करेंगे, वहां पर मुसलमानों के वोटों की तादाद बढ़ाने का काम करेंगे। अरे हम लड़ेंगे ही नहीं तो हम जीतेंगे कैसे? फिर वो काशीराम का नारा कहां गया बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब के, पहली बार लड़ेंगे, दूसरी बार हराएंगे, तीसरी बार जीतेंगे? वो नारा क्या सिर्फ बिहार, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र के लिए है? क्या वो नारा इनके लिए, गोशा महल के लिए नहीं बनता? ये बातें समझ के बाहर है। जब हम ऐसी सवाल करते हैं तो फौरी अब आगे मुनाफिकत का नारा लग जाता, फौरन आगे लोग कहते हैं कि भाग गया, आप जमात छोड़ दिया, टिकट नहीं मिली। अरे मेरे को टिकट मिलो ना मिलो, अगर टिकट की मुझे ख्वाहिश होती तो मैं बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी से याखुतपुरा पूछता। अगर मेरे को एमएलए बनने की ख्वाहिश होती तो मैं बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी से चंद्रान गुप्ता पूछता। अगर मुझे एमएलए बनने की ख्वाहिश होती तो मैं बैरिस्टर असदुद्दीन से चार मीनार पूछता। मैं क्यों बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब से मैंने क्यों गोशा महल पूछा? मैंने उनसे गोशा महल इसलिए पूछा कि उस मलून को उसकी भाषा में, उसकी जबान में जिस तरीके से आप, वो हमारे दिलों को तकलीफ पहुंचाता है। सियासी जमहूरियत है, जमहूरियत में हमको मौका मिलता है, मौके के तहत हम जाके उसको उसकी भाषा में जबान देते और मुसलमानों के इत्तेहाद का मुजाहरा करके हम उसको बता के आते। लेकिन नहीं, उसको सियासी तौर पर जिंदा रखना है, इस वास्ते वहां पर उसको कामयाब होने के लिए फ्री वॉक दिया जाता है। 3 इलेक्शन में उसको फ्री वॉक दिया था। आप सवाल करिए बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब के पास कि क्या मंसूबा है बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब के पास राजा सिंह को जो है गोशा महल से रोकने के लिए? कोई जवाब नहीं मिलेगा आपको उसका। अरे ठीक है, आपको अगर ख्वाजा बिलाल का चेहरा पसंद नहीं है, आपको ख्वाजा बिलाल का अगर जो है जुबा पसंद नहीं है, माजी में ख्वाजा बिलाल ने बहुत सारे मजलिस इत्तेहाद उल मुस्लिमीन के खिलाफ बयानात दिए हैं, अगर इस बुनियाद पे ख्वाजा बिलाल आपको पसंद नहीं है तो आपके पास जो पसंदीदा चेहरे बहुत से हैं जिनके चेहरों को देख के आप मुस्कुराते हैं, उसमें से कोई एक चेहरे को लेके आके गोशा महल ले देना था। वो मुसलमान को खड़ा करना था वहां पर, आप मुसलमान को वहां पे खड़ा करके आप उसकी तायीद करना था। बीआरएस के जो आपके जो ताल्लुकात है, उस ताल्लुकात की बुनियाद पे बीआरएस से आप एक अच्छे से हिंदू कैंडिडेट को लाना था और उसको बोलना था कि तुम मुस्लिम बस्तियों में इंटर मत हो, हिंदू बस्तियों में जाओ, काम करो, उनके वोटों को आप पोलराइज कराना था, जैसा आप करते हैं, जैसा आप फिरोज खान के लिए करते हैं, जैसा नामपल्ली के लिए आप करते हैं, जैसा मलकपेट के लिए आप करते हैं, जैसे याकूबपुरे के अंदर हिंदू वोटों को बाइफिकेट करने के लिए आप काम करते हैं, वैसे ही लेके जाके राजा सिंह के खिलाफ में आप टीआरएस से एक हिंदू कैंडिडेट को वहां पर डलाना था और केसीआर, केटीआर जो आपके मामू भांजे जो भी है, आप उनके जरिए उसको इंस्ट्रक्शंस पास करना था कि मुस्लिम बस्तियों में काम नहीं करना, मुसलमानों की 80% है, तुम जाओ हिंदू बस्तियों में काम करो। असदुद्दीन अवैसी साहब निकल के अगर गोशा महल में मुसलमान बस्तियों में 80,000 वोटरों के दरमियान में अगर फिर के असदुद्दीन अवैसी साहब पैदल दौरे कर करके अगर मुसलमानों को वहां पे जो है बेदार करते,
80,000 में अगर 55,000 भी मुसलमान अगर निकल के अगर मुस्लिम कैंडिडेट को वोट दे दिया तो मैं ये सवाल हैदराबाद की आवाम के लिए छोड़ता हूं, क्या ये मलून हारता नहीं सकता था? अरे जाती पैसा हम लगा देते, लोगों से चंदा मांग के लेके जाके गोशा महल लड़ा देते अगर आप किसी मुसलमान को देते। मैं अपनी जात के तौर पे, अल्लाह के फजलो करम से चंदे की जरूरत नहीं है, मैं अपनी जात से 2-4-8 करोड़ लगाता, गोशा महल उसके वो मलून के खिलाफ में इलेक्शन लड़ता और ये बताता कि उसको मुसलमानों का इत्तेहाद ये होता है। लेकिन इसका कोई प्लान नहीं है आपके पास। अब उसकी आप तैयारी कर रहे हैं, उसको लोकसभा में लाने की तैयारी है, इस वजह से उसको वहां पे फ्री वॉक दिया जा रहा है। और ऐसी जमात के साथ रहना मैं नहीं समझता मेरे लिए जो है काबिल फख्र हो। इसलिए इस बुनियाद पर मैं आज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से दस्तबरदारी का ऐलान करता हूं। मैं मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन छोड़ने का ऐलान करता हूं। आगे मैं क्या करूंगा, किसके साथ जाऊंगा भी या नहीं जाऊंगा, या सियासत में रहूंगा या नहीं रहूंगा तो किसके साथ रहूंगा, इसका ऐलान मैं सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया के जरिए मैं हमारे लोगों तक पहुंचाते रहूंगा। लेकिन यह बात बिल्कुल हैदराबाद के मेरे जैसे मुसलमान के लिए नाकाबिल कबूल है कि क्यों नहीं हम गोशा महल में, जहां पर 80,000 मुसलमान हमारे हैं, क्यों नहीं हम वहां से मुसलमान के कैंडिडेट को खड़ा करते हैं? क्यों नहीं हम बीआरएस का इस्तेमाल करके, टीआरएस का इस्तेमाल करके हम क्यों नहीं वहां पर जो है हिंदू वोटों के अंदर जो है हम बाइफिकेट करने का काम करते और मुसलमानों में इत्तेहाद का नारा लगा के हम मुसलमानों को घरों से निकालते और इस मलून के खिलाफ मुसलमान एक तौर पर, मैं समझता हूं अगर हम मुसलमानों के अंदर अगर निकल के अगर जो है हम पैदल दौरे करते, उनके छोटे छोटे ग्रुप मिसिंग करते, तो घरों से चुमटियों की तरह मुसलमान निकलकर जो है पोलिंग के दिन अपने वोटों का मुजाहरा करते और ये मलून हारता। आप देखिए कोई पॉलिसी नहीं है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के पास। एक पॉलिसी बता दीजिए कि राजा सिंह को, मलून को हराने की एक पॉलिसी बता दीजिए। नहीं, उसको सियासी तौर पर जिंदा रखना चाहते हैं। और ऐसी जमात जो इस गुस्ताख रसूल को जिंदा रखना चाहते हैं, बखुदा ऐसी जमात के साथ मैं रहना मुनासिब नहीं समझता हूं। इसलिए आज मैं कुलीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से अपना दस्तबरदारी का ऐलान करता हूं। शुक्रिया बहुत बहुत। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गैनाकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद।